26 we are seeing. 26 का ये पार्ट दिया था, किया किसी ने? ये वाला सेकंड पार्ट did you do? Could you get the answer? Okay. Similar part is again in the further questions. If we connect the wire here, then how much current will go in this? आगे है वो question. We can avoid here. Okay. Now, number 27 में थोड़ी सी वर्डिंग इसकी प्रॉपर नहीं है. I will bring the correct wording क्या है यहाँ पर. But meaning is this कि ये infinite series है. Find the net resistance. It goes up to infinite. Find the net resistance. Infinite series का किया था हम लोगों ने. We'll just take 2 points where from where it is repeated again, same unit is repeated. ये यहाँ से देखो 1 resistance, second and third. If we take the point P and Q here, वहाँ से देखते फिर से repeat हो गया. This is there, this is there, this is there. From point and Q, point P and Q, same units are repeated again. तो वहाँ से x मान लेंगे, यहाँ से आगे का पूरा x मान लेंगे. That's how we did in the class NCERT book. Point P and Q से x मान लिया. It has become simple circuit. This and this are in series. 2r plus x हो जाएगा. इसके साथ पैरेलल में है. R1 into R2 upon R1 plus R2. इसके बाद क्या किया था? What was the next point? Whole should be equal to x again. This AB should also be x again, है ना? इसको x put करके quadratic equation थी, उसको solve कर लिया था. Yes or no? So that's how we'll solve infinite series. उसको भी x मान लो पूरे को, because if it is, if we are taken, it is infinite series, है ना? If we take x from PQ, it will be x from AB. If we take x from AB, यहाँ से x लिया है हमने, मतलब if we connect the battery to AB, then RAB is x. So if you count from the next, if you leave 1 unit or 1 box, then also it is going to be x. Therefore PQ को भी हमने x दिया था. And it is, since it is running up to infinity, quadratic equation, solve it. अच्छा, ये solve करने की जरूरत थी क्या? Without solving, we could have got the answer. How? How without solving we could have got the answer? बोलो, somebody can tell? तो ये R है और इसके बाद ये यहाँ पे कुछ होगा, मतलब ये R है और after that we don't know क्या आएगा. तो suppose R and after that we don't know क्या आने वाला. से in after that 10 to the power 5 ohm आ रहा है. We don't know. तो R in parallel to the 10 to the power 5 ohm will be less than R. जो पैरेलल में जो छोटा होता है उससे भी कम आता है. तो R से छोटा क्या है आंसर? This is the only. ये भी R से बड़ा है, ये भी R से बड़ा है. तो B is the only one which is less than R. Are you getting? ये यहाँ से यहाँ तक हमें पता है, उसके बाद का हमें पता नहीं क्या है. आफ्टर दैट कितना है. इसके साथ जो भी है पैरेलल में ही है, दिस साइड सबका. तो 2 पैरेलल रेजिस्टेंस में नेट रेजिस्टेंस विल बी लेस देन द लोएस्ट. सपोज हमने R कोई, R तो हमें पता ही है, इसका तो हमें पता ही नहीं है इस तरफ क्या है, whether it is more than R or less than R. In any case it is less than R आंसर. यही तो दिख रहा है, less than R. Got it? So without solving we can get the clue which will be the answer, provided if we understand this is question for infinitive series. इसकी wordings थोड़ी सी clear नहीं है. I will bring it proper. What is, how it is to be put properly.
All right, this is done. What about this question? इसका आंसर देख लो. आंसर तो भाई उसमें r√3 - 1 आएगा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद. What about this? In the given circuit, potential of point T. Where is the point T here? कैसे निकालेंगे पोटेंशियल? ऐसे क्वेश्चन किए हम लोगों ने. Yes, we have done it. 0 आएगा. 0 तो भाई यहाँ पर होगा C का और D का. -8 वोल्ट. माइनस आ सकता है. माइनस में ही है यहाँ पे. तो ये होगा कैसे? देखो एक मिनट. 0 तो यहाँ का होगा बिकॉज इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अर्थ. पर यहाँ पे तो और कम हो जाएगा. करंट किधर? अच्छा, करंट किधर जाएगा ऐसा? तो D will be D is 0. So E has to be less than 0. Is there any problem? No sir. Okay. तो ओम्स लॉ लगा देंगे यहाँ पर. VD minus VE is equal to IR. R is 1. तो I निकालना पड़ेगा. हाँ, कैसे किया इसको बोलो. पहले I निकाला है. क्लोज लूप है. I will be net T. एक ही बैटरी दी है. कितनी? 8. R कितना है? टोटल रेजिस्टेंस. सिंगल लूप में सभी सीरीज में आ जाएंगे. 5 and 1 6. ठीक है. 5 and 1 6 है. 4/3. तो Ohm's law at point D for DE. VD minus VE. करंट ऐसे आ रहा है ना. तो D will be at higher potential. VD minus VE is equal to I into 1. तो VD is 0. VE निकालना है. करंट is 4/3 into 1. तो VE is -4/3. C ऑप्शन है. क्लियर? समझ में आ गया? Yes sir. और B का कितना होगा पोटेंशियल फिर? B will be how much? निकाल सकते हैं. यहाँ पे ओम्स लॉ लगा दो. 4/3. यहाँ पे ओम्स लॉ लगा दो. VB minus VC is equal to IR. I कितना है? 4/3 into 5. ये तो VC तो 0 हो जाएगा. अर्थ के साथ कनेक्टेड है. तो VB will be 20/3. Potential of point D will be 20/3 volt. Clear or not? वैसे ही सेम मेथड. VB minus VC is equal to I. I is 4/3. R is 5. हाँ ठीक है. Are you comfortable with this question or you want more explanation here? बोलो, इसमें तुम लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा क्या? ऐसे में क्या करते हैं? पहले करंट निकाल लो. सिंगल लूप में है. ऑल द रेजिस्टेंस विल बी इन सीरीज. नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस. करंट मिल गया. फिर ओम्स लॉ लगा दो उस पार्ट के लिए जहां पे हमें एक वन साइड का पता ही है ना. दिस इज अर्थ. तो ये D is 0 volt, C is 0 volt. तो बस ओम्स लॉ यहाँ लगा देंगे तो B का मिल जाएगा. इधर लगा देंगे ओम्स लॉ तो E का मिल जाएगा. एक तो 0 ही होता है. डन. Yes, Yes. sir. 29. Similar question we have done. It is asked in the reverse way. दूसरी रिवर्स वे में पूछा है. तो you should be able to do it. Got it? क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर हमने इसको सर्कल बना दिया
x/2 ऊपर पैरेलल में rp विल बी कितना x/4 आ जाएगा x r/n तो x/4 आ गया बट rp दिया कितना है उन्होंने r दिया हुआ है सी आंसर आ रहा सिंगल वायर था ऐसा उसका रेजिस्टेंस एक था उसको तुमने ऐसे सर्कल में कन्वर्ट कर दिया डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस उन्होंने दिया है r तो x को टोटल वायर का रेजिस्टेंस x है तो x/2 ऊपर x/2 नीचे rp वाले फार्मूले से x/4 आ जाएगा which is given r फुल वायर का रेजिस्टेंस 4r हमने देखा था 1/4 हो जाता है रेजिस्टेंस डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में तो फुल वायर का 4r है तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में आ रहेगा 4 टाइम्स डायरेक्ट कर दो r दिया फुल वायर का 4r होना चाहिए गॉट इट Yes, sir. व्हाट अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट ही है नेक्स्ट क्वेश्चन तो Yes, sir. R/3 आना चाहिए। नहीं अच्छा ये तो वाला है ना पैरेलल ऑल थ्री आर पैरेलल इसमें कुछ ज्यादा करना ही नहीं r/3 कर चुके कई बार हम all are in parallel rp will be r/3 okay what about this 31 3 ओम का 0.8 दिया है ये निकाल सकते इधर का बिकॉज दोनों पैरेलल में है I1 into R1 is equal to I2 into R2 पैरेलल में है ना ये पॉइंट ऊपर वाले को I1 ले लें तो 0.8 दिया उसका रेजिस्टेंस 3 है I2 मिल जाएगा इसमें कितना आ रहा है 0.4. I2. 6 तो I2 will be 0.4 है ना I2 भी है क्या 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 0.4 एम्पियर टोटल करंट कितना हो गया यहाँ पर कितना आएगा फिर I will be I1 प्लस I2 दोनों मिलाकर 1.2. 1.2 हो जाएंगे बस हो गया क्वेश्चन आसान अभी क्या करना है पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू 4 ओम ओम्स लॉ लगा दो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए V इज इक्वल टू IR टोटल करंट मिल गया 1.2 R कितना है 4 देयरफॉर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम विल बी यहाँ पे I1 नहीं यहाँ पे I करो ये टोटल करंट I तो I into 4 तो 1.2 into 4 4.8 4.8. तो थोड़ा सा सोच के कर सकते थे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें
इवन बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये समझ में कैसे लिखा हम लोगों ने ये वाला पॉइंट? सीरीज पैरेलल में V1 इज इक्वल टू V2 है ना, ऊपर वाली ब्रांच का और नीचे वाली पोटेंशियल का, अगर अदरवाइज यू कैन फाइंड आउट I2 ऐसे भी निकाल सकते थे, नहीं इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, हाँ ठीक है वही तरीका है, इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो V1 from upper branch will be equal to V2 from lower branch, both are in parallel, अपर ब्रांच का I1 R1, लोअर ब्रांच का I2 R2, ये पैरेलल से हमें दूसरा करंट भी मिल गया, दोनों करंट मिलके इसके पास जाएंगे, तो हम सारा लगा देंगे, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस 32? देखो ये अमीटर है ना, इनका इस अमीटर जो है, they don't create ideal emitter don't create the any change in the resistance in the circuit or change in the current in the circuit. If they are ideal, they will not disturb the circuit, only they will do their job. वोल्टमीटर है तो करंट बताएगा, और नहीं वोल्टमीटर है तो पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, अमीटर है तो करंट बताएगा। यहाँ पे करंट इंडिकेट करेगा कितना करंट इसमें से, वही निकालना भी है। इफ each resistance is 9 ohm, then रीडिंग ऑफ द मीटर, कितना करंट इसमें से जा रहा है। सर 9 एम्पियर होगा। 9 एम्पियर, 9 तब होगा जब यहाँ पे लगा होगा, वो बीच में लगाया ना यहाँ पर, यार यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ या यहाँ लगाओ, बट वो बीच में लगा हुआ है, यहाँ पर लगा है या यहाँ लगा है, सेम रीडिंग आएगी। ओके, if we find the current in each branch, बोलो बता सकते करंट इन ईच ब्रांच? I will be V by R, V9, R कितना 9, 1 एम्पियर, सभी ब्रांचेस में 1 एम्पियर आएगा, पैरेलल में है सारी ब्रांचेस, और यहाँ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है नहीं, all will get 9 volt each, all will have the 1 ampere current in each branch, that's all. Now could you get, अभी कॉमन सेंस लगा लो, बोलो क्या आंसर है? वेरी सिंपल, अभी सिंपल, सिंपली लॉ ऑफ कॉमन सेंस नाउ, नथिंग एल्स। जब दिख रहा है डायग्राम में 1 एम्पियर सभी में, देखो ओके 1 एम्पियर इसमें आएगा, इसमें भी 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर, इसमें 1 एम्पियर, इसमें 1 एम्पियर, सभी में 1 1 1 1। फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे, सब ऐसे आएंगे, इसमें से होकर जाएंगे इधर, कितना हुआ? 5 5 ब्रांचेस है इधर से, 1 2 3 4 5, सभी में 1 एम्पियर, मिलके 5 एम्पियर हो जाएगा। Therefore 5 ampere. This is 1, this is 1, this is 1, this is 1. ठीक है, थोड़ा बस वही, जहाँ एमीटर की पोजीशन देख लो, as I told you, if it is connected here, all the current will added up and will pass through the current drawn from the battery, कितना होगा, how much is the current drawn from battery? बैटरी से कितना ड्रॉ होगा, कितनी ब्रांचेस है, 5 6 7 8 9 एम्पियर ड्रॉ होगा, 9 एम्पियर। 9 एम्पियर चलेगा, सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आइडेंटिकल, 1 in each branch. So depending upon position of a meter, it will indicate its reading.
कितना उसमें से क्रॉस होकर जा रहा है। तो डिवाइसेस विल बी आरडीएल इवन इफ दे आर नॉट रिटन, लिखना चाहिए ठीक। अच्छा रेजिस्टेंस नहीं दिया उसका तो आरडीएल ही है फिर वो, तो दे डोंट डिस्टर्ब द सर्किट इफ यू कनेक्ट देम। तो जीरो रेजिस्टेंस, आरडीएल एमीटर विल हैव जीरो रेजिस्टेंस, यू नो, खुद का रेजिस्टेंस नहीं होगा, इट विल नॉट डिस्टर्ब द सर्किट। नाउ नेक्स्ट वन इज, ये देखो, two wires of equal diameters of resistivity rho 1 and rho 2, length L1 and L2 respectively are joined in series, equivalent resistivity निकालनी है। तो इसको भी जस्ट सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के लॉजिक से कर सकते हैं। आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2, वैल्यू पुट कर लो इसको, एक सिंगल मान लो, सिंगल वायर मान लो इसको, है ना, दोनों को रिप्लेस कर दो सिंगल वायर से। जिसकी रेजिस्टिविटी रो डैश ले लो, जो कि हमें निकालना है। लेंथ कितनी होगी, L1 प्लस L2 हो जाएगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, डायमीटर सेम रहेगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा। तो ये तुम्हारा आरपी हो, ये इसका रेजिस्टेंस आरपी आ जाएगा, समझा। उसको सिंगल वायर में कन्वर्ट कर लो और रेजिस्टेंस आरपी ले लो, रेजिस्टिविटी रो डैश ले लो और सीरीज का फार्मूला लगा दो, वैल्यू पुट कर दो, कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स, आर रो पी आ जाएगा, रो डैश आ जाएगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ऑफ दिस। समझा कि नहीं, देखो करके देखो। आर पी इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इंडिविजुअली कितना है वो लिख लो, रो 1 L1 बाई ए, रो 2 L2 बाई ए, रेडियस सेम है तो एरिया प्लस, इसको सिंगल मान लिया तो रो डैश लेंथ L1 प्लस L2 हो जाएगी बाई ए चला गया, तो रो डैश इज रो 1 L1 प्लस रो 2 L2 अपॉन L1 प्लस L2। तो ऑप्शन नंबर ए। सर? चेक भी या सर हमने वो आरपी क्यों लिए? सीरीज में है, कनेक्टेड है, ज्वाइंट इन सीरीज। यहाँ ओके सर। आरपी नहीं, आरएस सिंबल, सॉरी, सीरीज में है तो आरएस लिख दो, सीरीज में है तो आरएस लिख दो। हमने लगाया सीरीज का ही फार्मूला बट सिंबल रॉन्ग लिख दिया ना, आरएस, ठीक है। और इसमें देखो चेक भी कर सकते, कैन वी चेक इट, यस। अगर हम इसको चेक करना चाहे तो कैसे चेक करेंगे, इसको समझ लो थोड़ी देर के लिए, सिंगल वायर है, सेम वायर है, R1 इज इक्वल टू रो 1 इज इक्वल टू रो 2 इज इक्वल टू रो हो जाएगा, सेम वायर है, सेम वायर को दो पार्ट ज्वाइन कर दिया तो सेम रेजिस्टिविटी आनी चाहिए। और ठीक है, तो रो कॉमन आ जाएगा ऊपर, L1 प्लस L2, नीचे भी L1 प्लस L2 कैंसिल हो जाएंगे। तो आइडेंटिकल अगर होता है सेम मटेरियल होगा तो सेम आंसर आना चाहिए। यू कनेक्ट n नंबर ऑफ डिफरेंट वायर तो सेम रेजिस्टिविटी आनी चाहिए, तो आ रही इस फार्मूले से। आर एस सीरीज, क्लियर। नेक्स्ट वन इज, बताओ कैसे, क्या दिख रहा है तुम्हें नेक्स्ट सर्किट डायग्राम में? नहीं, हाँ दो, सॉरी ये वाला पहले 34 पहले। ये कर सकते, किया है हमने क्लास में। Uniform wire of resistance 9 ohm is cut into 3 equal parts. They are connected in the form of equilateral triangle, and EMF cell of EMF 2 volt and negligible interresistance is connected across BC. Potential difference across AB. ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल का नेट रेजिस्टेंस निकाल लो, करंट निकाल लो। नेट रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, जिस ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उसका रेजिस्टेंस 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे, ईच पार्ट विल हैव द रेजिस्टेंस 3 ओम, इसको 3 से डिवाइड कर दो,
3 3 3 3 3 आर इन ट्रायंगल। जैसा इंस्ट्रक्शन है वैसा करते जाओ, यू गेट द आंसर। 9 बैटरी कितनी है? 2 6 1/3 potential drop will be वन आ रहा है क्या आंसर? ओके देखो डायग्राम इसका हमने शायद बनाया हुआ है, लेट मी शो यू और वी हैव टू सॉल्व इट। नहीं नहीं है क्या? हाँ है, आई थिंक इट है। देखो ओके, लेट मी जस्ट शिफ्ट दिस क्वेश्चन थोड़ा सा। हाँ तो सी दिस, कैन यू सी? ए बी सी हमने यहाँ से ले लिया, ए बी एंड सी। तो टोटल 9 था, कट किया 3 इक्वल पार्ट, 3 ओम 3 ओम एंड 3। ठीक है, तो ऊपर वाली ब्रांच का कितना हो गया? 6। इट इज गेटिंग 2 वोल्ट फुल करंट आ जाएगा अपर ब्रांच में। रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रांच CAB इज 6। करंट इन दैट ब्रांच, ऊपर वाली ब्रांच का करंट, नीचे का नहीं चाहिए हमें। करंट इन दैट ब्रांच R लिख देता हूँ यहाँ पे, सिंबल रहा है। ठीक है, इज हाउ मच? V by R। तो V is 2, R is 6, 1/3। किसका चाहिए? AB चाहिए, बस इतना चाहिए इसका। तो VAB will be I into its resistance, I into RAB, that 3 will go 1 volt। ठीक है, समझ में आ गया? अरे देव, यस सर यस। अच्छा ये बताओ, पोटेंशियल ड्रॉप इन CB ब्रांच में कितना होगा? क्विक आंसर। सर 2 वोल्ट। पूरा 2 ही मिल रहा है उसको, ये 2 मिल रहा है पूरा, उसी में ड्रॉप हो जाएगा, डायरेक्टली कनेक्टेड है बैटरी से। सी भी तो ऊपर से भी हो सकता है ना, ये भी सी भी है, ये भी सी भी, दोनों में 2 2 है। वैसे तो बीच में ए है तो इसको हम मेंशन करने के लिए सी ए भी बोलेंगे, तो दिस हैज टू बी, दिस विल बी सी बी। देन ऊपर से भी काउंट करो तो टोटल ब्रांच आ जाएगी वो। अगेन 2 वोल्ट फॉर बोथ द रेजिस्टेंस विल बी ड्रॉप। ठीक है, नो प्रॉब्लम, डन सो फार, थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। इतनी डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, जस्ट लुक एट मैंने। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 35? सॉरी हाँ 35 जो है, कौन किसके साथ पैरेलल में है बोलो, या सीरीज में है? सभी तो 2 ही है। यहाँ से अगर हम इसको डिस्कनेक्ट करके ऐसे कनेक्ट कर दें, यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा? फिर इन दोनों पॉइंट को कंप्रेस कर दो, यहाँ भी कंप्रेस करके सिंगल पॉइंट पे ले आओ, तो ये और ये पैरेलल में, और ये सिंगल पॉइंट बन जाएगा, ये और ये पैरेलल में, एंड ये लास्ट में सबके साथ पैरेलल रहेगा। तो लेट्स सी मैंने बनाया क्या डायग्राम? हाँ बनाया हुआ, देखो ऐसा है। It will look like this।
दिख रहा है? ऐसा ऐसा आना चाहिए। 2 इन पैरेलल 1 आ जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, तो ये 2 आ जाएगा, फिर से इस 2 के साथ पैरेलल में है तो 1 आंसर। इधर से देखेंगे तो कंफ्यूजन होगा क्या, इसलिए उसको पहले रीएडजस्ट करो, ऊपर कनेक्ट करो, फिर ये कॉम्प्लेक्स कर, ये दोनों पॉइंट एक साथ आ गए, और ये भी सिंपली कनेक्टेड वायर है, ये दोनों पॉइंट एक साथ आ जाएंगे। ठीक है? Yes, sir. What about this? In the circuit shown the reading of the voltmeter, ये voltmeter की रीडिंग, ऑलरेडी सिमिलर क्वेश्चन वी हैव डन। पहले वोल्टमीटर हटा दो, करंट देख लो कितना जाएगा ऊपर, इसमें कितना जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो आज हमने बिगनिंग की थी ना जिस क्वेश्चन की, वैसा ही है, वैसा टाइप ही है। पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया यहाँ पे कितना है, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल। नहीं, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, केवल डायरेक्शन नहीं पूछी है ना। और रीडिंग के लिए नहीं नहीं, बस वही है, वीसी माइनस वीडी, ये निकलना। तो ये यहाँ तक कौन सा लगाएंगे, पहले करंट इक्वली डिवाइड हो रहा है क्या? दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम एज क्वेश्चन नंबर 26 जहां से हमने स्टार्ट किया था। Yes, sir. बिल्कुल सेम है कि नहीं? करंट निकालने वाला क्वेश्चन देखते क्या है, देखो इसका क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सेम है। देखो पहले हमने देखा करंट, वोल्ट मीटर पहले निकाल दो इसको वोल्ट मीटर से, इफ इट सपोज ये हाई नहीं था, वैसे भी आइडियल होता है टू नॉट डिस्टर्ब द सर्किट इफ यू रिमूव। तो 4 + 16 20 हो गया, नीचे 16 + 4 20, करंट विल बी इक्वली डिवाइडेड, 1 एम्पियर ऊपर 1 एम्पियर नीचे। ठीक है, तो बस यहाँ से फिर ओम्स लगा लो इतने पार्ट के लिए, VA माइनस VC विल बी करंट इनटू रेजिस्टेंस 4, ऐसे ही VA माइनस VD करंट इनटू रेजिस्टेंस माइनस, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लिया यहाँ से, तो क्या कैंसिल हो रहा है, VA हैज गॉन, VD माइनस VC मिल गया -12, तो VC माइनस VD निकाल दिया, तो C इज एट हायर पोटेंशियल, तो रीडिंग विल बी 12 वोल्ट। ठीक है, रीडिंग विल बी 12 वोल्ट। कैन यू सी? Now voltmeter connection of voltmeter is not going to affect because ये आइडियल रहता है, आइडियल रहेगा तो इसमें बहुत हाई रेजिस्टेंस रहता है इसका आइडियल का, तो नो करंट गोज इन दिस एंड इट डजंट डिस्टर्ब द सर्किट, जितना करंट इधर आ रहा था पूरा उधर जाएगा, ये केवल पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा, दैट्स ऑल। ये कुछ ड्रॉप नहीं करेगा अपनी तरफ से कुछ सर्किट में। तो 26 and 36 exactly same question. Which point is at higher potential? C higher पे है कि D higher पे? C। The C. नहीं C, हाँ C है, तो तभी तो ये प्लस VC माइनस VD 12, वैसे भी देखने से पता लगेगा करंट सेम है, तो 4 में कम ड्रॉप होगा, तो यहाँ पर ज्यादा पोटेंशियल बचेगा, और 16 में ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा, कम बचेगा D पर पोटेंशियल। और यहाँ से भी देख सकते हैं ना, डिफरेंस अगर प्लस आता है तो पहली वैल्यू पॉजिटिव होती, हायर वैल्यू होती फर्स्ट वन। प्रोडक्ट 36, देखो ये वाला 37, कैन यू सी इन द सर्किट शोन द करंट बिटवीन B and D इज 0, B and D के बीच में 0 है इसमें, आई मीन गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रहा है, तो हमें इसमें क्लू मिल गया क्या सिचुएशन है।
The unknown resistance is unknown resistance where it is x. x निकालना है. Simple question. बोलो क्या है? What is this? So Wheatstone bridge है. Wheatstone bridge. Balance or unbalance? So balanced होना चाहिए. Why? Balance. How balance? Why? Because no current passes through the galvanometer branch. This is at same potentials. Balance है तो इसका प्रोडक्ट सामने वाले के साथ और इसका इसके साथ अपोजिट वाले के साथ, या फिर दिस बाय दिस जो भी करना है, या फिर हमने कैसे किया था 4/x है ना, तो 4/x इज इक्वल टू ये दोनों में, अच्छा 4 नहीं है इसमें, एक और भी है 16 हो जाएगा ना, दो है ना, तो ये दोनों Yes, मिला के 16/x, और ये सीक्वेंस हमने फॉलो की, ये बाई ये तो दिस बाय दिस हो जाएगा, तो ये कितना है 1 and 3 4 हो जाएगा, और ये इसका कितना आएगा पैरेलल में है 1/2. 1/2, तो 1/2 2 ऊपर आ जाएगा, इसका 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 तो 8 और ये तुम्हारा 2 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2. क्या ऑप्शन बी? दोनों का मिला के हाफ आ गया, मैंने देखो डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पर 1/2 होगा तो 2 ऊपर आ जाएगा. ठीक है, कैलकुलेशन BRN 2 ऑलराइट. नेक्स्ट वन, इसमें कोई डिफिकल्टी है? दिस इज द केस ऑफ Wheatstone bridge, balance one, therefore ratio of the resistance R1/R2 is equal to R3/R4. Only thing you have to make the proper sequence, है ना. अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा तो फिर ऐसा कर लो, सीक्वेंस अगर याद नहीं आ रही वैसे तो इट इज फुल प्रूफ, इसका रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इसका, या फिर तुम ये भी ले सकते हो इसका रेजिस्टेंस डिवाइड बाय लोअर ब्रांच इक्वल टू दिस बाय दिस, है ना. तो इसमें कोई मिस्टेक होने के चांस नहीं रहते. यू कैन अगर अनटिल बड़ी मिस्टेक ऐसा नहीं करना, इसका डिवाइड बाय इसका, दूर वाले का अगर है मतलब अपोजिट वाली ब्रांच से मल्टीप्लिकेशन है. What about this one? In circuit shown in the figure, the current flowing is in 2 ohm resistance. इसमें कितना करंट जाएगा? Wheatstone bridge है क्या बैलेंस? Yes, sir. इसमें तो जाएगा नहीं. रेशियो क्या है? 5 10/2 5 है, नीचे भी 25/5. दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस. तो Wheatstone bridge है, इसमें नहीं जाएगा, बट जितना इसमें आ गया उतना पूरा का पूरा इधर आ जाएगा. तो इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस फॉलो करेगा. हमें अगर ये इसका ब्रांच इस I1 चाहिए ऊपर वाली ब्रांच का, तो I1 विल बी अपोजिट रेजिस्टेंस, अपोजिट ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस R2 विल बी 30 डिवाइड बाय दोनों ब्रांच के एडिशन. तो ये 10 ऊपर वाली ब्रांच को R1 समझ लो, तो दोनों कितना आ रहा है 10 and 2 12 प्लस 30, सिंगल ब्रांच मान लो उसको, इनटू करंट अप्रोचिंग, टोटल करंट अप्रोचिंग 1.4. देखो सॉल्व करके कितना आ रहा है ये कैलकुलेशन, थोड़ा देखो. 1 एम्पियर है क्या? नहीं, हाँ 1 एम्पियर है. 1 ampere. 1 एम्पियर है. तो इस दोनों को मिला के R1 ले लेना ना, तो इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस है ना. ऐसा किया था ना हम लोगों ने
I1 is equal to R2 upon R1 plus R2 टाइम्स ऑफ टोटल करंट अप्रोचिंग। इसको बोलते हैं इनवर्स रेशियो। ऊपर वाली ब्रांच में चाहिए तो नीचे वाली ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस R2 हो जाए, नीचे वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दोनों ब्रांच का। लेट मी चेक द आंसर। 38 का आंसर क्या है? हाँ 1 एम्पियर सही है, ठीक है। और ऑलराइट, इसमें कितना जाएगा बोलो फिर? 3 ओम में कितना आएगा? 3 ओम में वही रहेगा जो नीचे ब्रांच में है, बीच में नहीं जाएगा। 3 ओम में कितना आएगा बोलो जल्दी से, बिना सॉल्व किए। सॉरी 3 है कि 5 नीचे, सॉरी 5 ओम में, 5 ओम में कितना आएगा बोलो? 0.4 एम्पियर। कैसे? सर I टोटल वाला इज इक्वल टू I1 प्लस I2। किरचॉफ लॉ से 1.4 आ रहा है, तो 1 ऊपर चला गया तो रिमेनिंग नीचे आ जाएगा। वही कंटिन्यू करेगा, इधर गैल्वेनोमीटर में नहीं जाएगा बिकॉज इट इज बैलेंस। किरचॉफ लॉ से हमें पता लगा बैलेंस है, रेशियोज आर इक्वल, ठीक है। और अगर तुम्हें ये फार्मूले से निकालना है तभी भी 0.4 आ जाएगा, तो उतना नहीं करना है। एक पार्ट का आ गया तो दूसरे का माइनस करके लेता। गेटिंग दिस पॉइंट्स? आर यू देयर? यस सर। अदर्स कोई डिफिकल्टी है क्या किसी में? जल्दी बोलो, ये क्वेश्चन में पर्टिकुलरली। नो रिस्पॉन्स कमिंग। क्या हो गया तुम लोग? अदर्स आर देयर? संस्कृति, रोहन, क्या है? सब सो गए क्या तुम लोग? अदर्स ऑन करके। एलिना, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तुम लोग समझ में आ रहा है कि नहीं क्या हो रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? डाउट है इसमें? क्विक रिस्पॉन्स, इसमें डाउट है क्या? No, sir. जस्ट रिवाइज द नोट्स। हमने हर पॉइंट कवर किया हुआ है। इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में करंट जाता है, और देन आल्सो अगर प्रॉब्लम है तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो, और कोई तरीका है इसका करने का? ऐसे भी कर सकते हो। अगर इनवर्स रेशियो का फार्मूला नहीं याद आ रहा तो यू कैन जस्ट स्टिक टू योर बेसिक्स। कैसे? ये तो पता, ये इतना तो याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ आ नहीं रहा। अपर ब्रांच का पोटेंशियल V1 थ्रू, ये पूरा ले लो, इक्वल टू V2। तो करंट अगर सपोज 1.4 तो मैं पता है अपर ब्रांच में I1 है, I1 चला गया तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? 12 हो गया ऊपर पूरी ब्रांच का। इसमें कितना चला जाएगा? नीचे वाले में कितना आएगा? 1.4 टोटल आ रहा था, I1 ऊपर गया तो नीचे इतना आएगा, टोटल रेजिस्टेंस 30। यहाँ से भी आ जाएगा ऐसे। इनवर्स रेशियो का नहीं याद आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल में है दोनों। चलो देखते दूसरा मेथड से। अपर ब्रांच क्या ले लो? पोटेंशियल थ्रू द अपर ब्रांच, पोटेंशियल थ्रू द लोअर ब्रांच, दोनों पैरेलल में। टोटल ब्रांच लेना, बीच में से नहीं। ऊपर वाली ब्रांच में करंट I1 लिया हमने, तो I1 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ होल ब्रांच इज 12, और नीचे वाली ब्रांच में बाकी इधर आ जाएगा 1.4 माइनस I1, नीचे आ गया करंट, इंटू रेजिस्टेंस ऑफ होल ब्रांच 30 आ रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, I1 इंटू 12। ओके, पहले छोटा कर लो इसको, 4 और 6 कर लो, और ये 6 और ये 15 है, और 6 से डिवाइड हो रहा है तो 2 कर लो, ये 5 आ गया। अभी सिंप्लीफाई करो, 2I1 और इधर कितना होगा? 7 माइनस 5I1 है ना। तो ये I1 इधर आ जाएगा, 7I1 इज इक्वल टू 7, I1 इज इक्वल टू 1। तो ये फार्मूला नहीं याद आ रहा तो तुम दूसरा आइडिया सोच लो।
ब्रांचेस पैरेलल में है, जैसे हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था। तो देयर इज ऑलवेज मोर देन वन मेथड, यू जस्ट बेसिक फार्मूला याद है तो यू कैन मैनेज इट, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इन एडवांस। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट होंगे नहीं, तो ऑलरेडी यू हैव द असाइनमेंट्स, उसको प्रैक्टिस करते रहो, सॉल्व करते रहो, ठीक है। Are you there? Are you connected? Yes, sir. Okay. Now, next one. About the next one. The Wheatstone bridge, P is given, Q is given, R is S सभी दिए हुए हैं। और in order to obtain the balance shunt resistance across S, यहाँ पर देखो ये इसका रेशो कितना है, 2/3 ऊपर वाले का, ये भी 2/3 चाहिए, इसको डिक्रीज करना पड़ेगा। 2/3 करने के लिए क्या करें, कितना आना चाहिए बोलो, रिड्यूस करना पड़ेगा ना। अभी ये 3/2 है इसका रेशो, चाहिए क्या हमें, 2/3, इसको रिड्यूस करो। इसका 2/3 करने के लिए कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, टोटल 4 होना चाहिए, है 9। रिड्यूस करने के लिए सीरीज में लगाना पड़ता कि पैरेलल लगाना पड़ता? Parallel. ओके, पहले चलो ऐसे देख लेते हैं कितना होना चाहिए। P/Q इज इक्वल टू S/R है ना, सीक्वेंस देखो यहाँ ऐसे ले लो, P 2/3 अपर ब्रांच का लिए, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, 9 नहीं लेना, अभी 9 है, लेकिन हमें S चाहिए कितना, वो S/R 6 है, ये कितना हो गया, S इज इक्वल टू 4 आ रहा है, 4 ओम होना चाहिए, है 9। तो क्या किया जाए, कैसे रिड्यूस करते हैं उसको, Parallel में लगा के यहाँ पे 9 के शंट साथ। मैंने बुक ही दिया, तुम्हें हेल्प कर दिया। इसमें हम समझ लो पैरेलल में हमने कितना लगाया, अभी S को हटा दो, ये 9 है, पैरेलल में X लगा दो, तो 9 एंड X का पैरेलल मिलके कितना आना चाहिए, 4 होना चाहिए, टोटल S की वैल्यू 4 होनी चाहिए, निकाली ना। तो S शुड बी, S किसका कॉम्बिनेशन हो गया, X इंटू 9 अपॉन X प्लस 9, पैरेलल का फॉर्मूला लगा दिया, ये होना चाहिए 4 है ना, 4 इंटू X इंटू 9 अपॉन X प्लस 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4X इंटू 4 इंटू 9 हो गया 36, और इधर 9X, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग? तो कितना रहा ये, 5X इज इक्वल टू 36 है ना, 36 इज इक्वल टू 2/3 S/6 4, सही है। ये दिया कितना था, 9 दिया था, 9 है ऑलरेडी है ना, एक्स पहले में आंसर मैच नहीं कर रहा। क्लोज आंसर लिखो फिर, क्लोज आंसर क्या रहा, 5 है ना, नहीं ये 5, हाँ ये 36 है, 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या? 7.2 आ रहा है। 7.28 के क्लोज है। ओके देखता हूँ मैं, जस्ट लेट मी सी क्या कैसे क्या कैसे किया है क्या मैंने।
shunt, एक मिनट, in order to obtain balance shunt resistance across it. ये 48 है. और कोई मिस्टेक तो नहीं की हम लोगों ने? अब वही आ रहा 7.2 आ रहा, डी ऑप्शन में. इतना डिफरेंस नहीं देना चाहिए उनको. X coming is 7.2. तो क्लोज आंसर क्या है फिर? डी. मेथड रिमेन सेम. मतलब इसमें देखो क्या जनरली होता नहीं है ऐसा. दे गिव यू वेरी एक्यूरेट ऑप्शंस, बट समटाइम्स हो सकता है. तो गिव द क्लोजेस्ट आंसर. व्हाट अबाउट 40? ये डायरेक्ट ही है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन. पूरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट डायरेक्ट है. देखो, नथिंग मच टू डू हियर. क्या करना पड़ेगा बोलो? P is here and Q is here. तो पोटेंशियल डिफरेंस V निकालना है. V इज इक्वल टू I. सिंपल. R कौन सा लेंगे? जब टोटल करंट ले रहे हैं तो टोटल रेजिस्टेंस ले लो उसका सबका. नेट निकाल लो. नेट निकालना आसान है कि नहीं? ये 4 and 12 16 और ये कितना है? ये 3 के साथ पैरेलल है. ये भी पैरेलल में आ जाएगा. तीनों ब्रांचेस पैरेलल में है कि नहीं? तो नेट निकाल Yes, लो. sir. और इसको रफ आइडिया भी लगा सकते हैं. 3 से भी कम आएगा ना. इसका 8 आ रहा है, इसका 16, लेस देन 3. तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय लेस देन 3, 2 के आसपास कितना आएगा देखना पड़ेगा ना. तो सभी आंसर 4.5 नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 से भी कम आएगा. तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 4.5. बट सॉल्व करना ही पड़ेगा तुम्हें, है ना. 1.5 से ज्यादा आएगा तो ये दोनों तो इसमें से हो सकता है. ये सिंपल क्वेश्चन, नथिंग मच टू डू हियर. नेट रेजिस्टेंस निकाल के टोटल करंट से मल्टीप्लाई कर लो. 2.88 आ रहा है. हाँ, ये आ रहा है. नेट रेजिस्टेंस 12 लेस देन 3 इतना आ रहा है. 1 पॉइंट समथिंग आएगा. ठीक है. Total resistance multiplied by total current will be giving you the potential difference of that particular points P and Q. 2.88 is the answer. ये बोलो 41. कहाँ से कहाँ तक? A and B. A and B के क्रॉस निकालना है. सपोज यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी. बोलो. इजी क्वेश्चन. क्या है ये? सर अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज है. व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट हो जाएगा ना. देखो, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट हो जाएगा. ये वाले सारे जो है ना, ये कॉर्नर वाले अपने नीचे वाले रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में. तो ये RR 2R एंड R 2R into R upon 3R. ये सब 2/3 में कन्वर्ट. ये भी 2/3, ये भी 2/3, ये भी 2/3, ये भी 2/3. तो 2/3 आंसर होगा. फिर ये आंसर हो जाएगा. जब सारी ब्रांच एक कॉर्नर का निकाल लो, 2R एंड R पैरेलल में, 2 into 1 upon 3, तो 2/3 आ रहा है एक कॉर्नर का. सारे तो वही आ रहे. फिर से 2R/3 C. बीच वाले रेजिस्टेंस में फर्क नहीं पड़ता. समझ में आया कि नहीं? दिखाऊं डायग्राम इसका? ऐसे बन जाएगा. ऐसा बन जाएगा.
बीच वाला आ रहा है, doesn't make any difference. Balance beat student miss. Getting these points. Yes, sir. Easy question. This is interesting question. ये बोलो, ये भी व्हाट इज कॉल्ड इजी क्वेश्चन है, थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाया, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है इसमें. Sir, PQ. Sir, PR. पी आर एंड पी क्यू. पी आर कैसे? सर पैरेलल में लगा है तो सिंगल रेजिस्टेंस से कम होगा ना. पी क्यू कैसे? सर Like- नेट रेजिस्टेंस मैक्सिमम पूछा है तो उसमें हाँ. तो पैरेलल में नहीं होगा तो वो ज्यादा ही होगा. देखो इसमें क्या होगा, लेस देन लोएस्ट वाला पॉइंट अगर हम ध्यान रखें, ये तो आर है, सभी आर है ना, कितने हैं? ओके लेट अस सी. या तो अपन निकाल लो सबका, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस, एक बार कैलकुलेट ही कर लो ना, पी क्यू के बीच में निकाल लो प्रैक्टिस के लिए, एंड देन क्यू आर के बीच का निकाल लो. ऐसे इसका निकालेंगे तो ये आर बाई 3 एंड आर इन सीरीज में आ जाएंगे, इसके साथ पैरेलल में आ जाएंगे. सबका निकाल के देख लो, फिर तुम्हें क्लू मिल जाएगा कि भाई ये जो है ये वाला, आई थिंक यही आंसर सही है. पी क्यू ये आर के साथ बाकी पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा ना, तो लेस देन लोएस्ट तो होता ही है, तो निकालना ही पड़ेगा. निकाल के फिर तुम उसके लिए सोच, थोड़ा उसको चेक करो, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा. लेट अस सी, निकाला, सबका निकाला. देखो पी क्यू का निकाला, जब पी क्यू का निकालेंगे तो क्या होगा, ये जैसा मैंने बताया, ये आर बाई 3 एंड ये आर बाई 2 सीरीज नेट इसका इसके साथ आ जाएगा, तो 5/11 हो रहा है. ये आर बाई 3 इसका आर बाई 2, ये 5r/6 इसके साथ पैरेलल में सभी आ रहे हैं ना. एक का 5r/11 आया पी क्यू का, और क्यू आर का देखो ये r/2. देखो ऐसे देखो, अभी r/2 से भी छोटा आने वाला. देखो यहाँ से जब किया हमने आर, आर से छोटा आने वाला. अभी जब हमने यहाँ पे बैटरी लगाई, पी आर से निकाला, तो ये खुद का तो इसका r/2 हो गया, बाकी ऊपर कुछ भी है तो r/2 से छोटा ही आने वाला है. यहाँ पे आर से छोटा, यहाँ से r/2 से छोटा, इधर लगा दिया हमने बैटरी, यहाँ से कनेक्ट किया, तो ये r/3 खुद का हो जाएगा इसका, तो r/3 से भी छोटा होने वाला है ना. हमें चाहिए क्या, मैक्सिमम चाहिए. इस केस में मैक्सिमम तुम्हारा यही आ रहा है मेरे ख्याल से, ए में आ रहा है. ये 5/11 आ रहा है, ये 4/11 आ रहा है, 3/11 आ रहा है. जहां पे कनेक्ट की ना बैटरी, उस पर्टिकुलर ब्रांच का जितना कम, उससे भी कम आएगा. तो इसमें आर था, तो आर से कम आएगा, बट आर इज द मैक्सिमम एज कंपेयर टू दीज ब्रांचेस. तो ए ऑप्शन है, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है. कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तीनों फटाफट निकाल लो, फिर कंपेयर कर लो कौन सा बड़ा है ना. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. और ये वाला जेई मेंस का क्वेश्चन है 43. जस्ट विल कंप्लीट एट 43 पे एंड कर देंगे. देखो इसमें भी थोड़ा सा सोचेंगे तो समझ में आएगा पूरा. जस्ट यू शुड हैव द आइडिया कहाँ से स्टार्ट करें. कौन से पैरेलल दिख रहे हैं या सीरीज दिख रहे हैं, बोलो. तो यहाँ पे कोई भी रेजिस्टर नहीं, ये पॉइंट हम यहाँ पे ला सकते हैं. 2 and 6 विल बी कॉम्प्लेक्स करके सिंगल पॉइंट बना सकते हैं. नहीं, जहाँ पे रेजिस्टर नहीं होता, दैट पॉइंट विल बी कॉम्प्लेक्स, विल कम टुगेदर. तो 2 and 6 विल बी इन पैरेलल, तो 1.5 आएगा. इस 1.5 के साथ सीरीज में होगा 3 आएगा. ये 3 और ये 3 पैरेलल में हो जाएंगे, तो 1.5. तो 6 डिवाइडेड बाय 1.5 विल बी 4 एम्पियर. तो देखो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम मनीषा जी इधर बनाया हुआ है. ठीक है. सी, एक मिनट, चला गया.
इसको मैंने थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप में बना दिया। See this battery 6 volt as it is, ये दोनों पैरेलल में है 2 and 6, इसके साथ फिर सीरीज हो जाएंगे 1.3 के साथ 1.5 के साथ, और ये 3 वाला एज इट इज लगा दिया। अभी देखो ये दोनों 2 and 6, इसका 1.5 वाला है। एक मिनट कहाँ पे, अच्छा मैंने 20 से सॉल्व किया। ये 2 and 6 का पहले निकाल लो, 2 into 6 upon 8, तो 12/8 1.5 ही है। 1.5 है, और इसके साथ अब ये हट के 1.5 आ जाएगा यहाँ पे, इसके साथ तुम्हारा सीरीज हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। लास्ट में ये पूरी ब्रांच का 3 बच गया और ये भी 3 है, तो वहां से मैंने वो निकला 1.5 फिर से, तो ohms का लगा दिया। ओनली थिंग ये क्लू मिलना था तुम्हें, ये वाले दोनों जहां पे देखो इस सर्कमफ्रेंस वाले हमने क्वेश्चन पहले किए हुए हैं, एक साथ ले आए थे वो पॉइंट, बिकॉज नो ड्रॉप हियर, ऑल द पॉइंट्स here, if no resistance is there, both the points can be brought together and then you can start your solution। ठीक है, यहाँ पे रोक दूं या एक और कर लो, ये वाला, ये इसमें this is direct question 44, देखो if rod has a resistance 4 ohm and if rod is turned in half circle, ऐसे पहले ऐसे थी, then the resistance along its diameter ऐसे, तो डायमीटर वही अभी एंड सी रहने वाले ना, अगर ऐसे है जो रेजिस्टेंस है वही एंड्स में रहने वाला है, फिर से वही सेम रहेगा कि नहीं बोलो। सपोज ये पॉइंट ए बी है और ये भी ए बी रहने वाला है, अगर तुम बेंड कर दो रॉड को तो उससे रेजिस्टेंस चेंज होगा क्या? नहीं, लेंथ तो उतनी रहने वाली है, एरिया क्रॉस सेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा, हम जो केवल बेंड कर रहे हैं, हम इसको केवल बेंड कर रहे हैं और कुछ स्ट्रेचिंग या कुछ नहीं कर रहे थे। ऐसे पहले ऐसे था वो, है ना। If rod has the resistance 4 ohm, it turned in half circle, then resistance along its diameter, हाफ सर्कल को भी डायमीटर बोल सकते हैं इसको, है ना। तो ये जस्ट नथिंग इन दिस क्वेश्चन, यहाँ पे एंड कर दो। यस सर। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक्स। कोई डाउट तो नहीं है तुम लोगों को पिछले क्वेश्चन में? नो, ओके।